Class 7, we are going to start with your third unit, that is real life heroes. Right? So, read these lines of a poem by George A. Carroll. What compels a person to climb mountains so high, to plumb the depths of oceans, to fly beyond the sky? क्यों हमको लगता है लोगों को कि वो माउंटेन्स क्लाइंब करें या फिर जो समंदर है उसकी गहराइयों में जाएं या फिर स्काई से भी ऊपर उड़ें? इट इज़ द नेचर ऑफ द मैन बिकॉज they are the most intelligent beings on earth and they want to conquer the nature and find its secrets. So what feelings do you think people have when they explore unknown places? Explore means खोजते हैं, अनजान जगहों पे खोज लेते हैं. They feel very happy. They are in awe of the new place. बहुत उससे चमत्कृत होते हैं. And they feel excited. और बहुत ही excited हो जाते हैं. Why do you think people explore? क्यों खोजबीन करते हैं? They have a sense of adventure. They are curious and they want fame also. Given an opportunity to explore, where would you like to travel to and why? I would like to go to Antarctica and Arctic. They are difficult places to reach and live. So in the previous chapter I talked about the 7 continents. In fact, Arctic is not a continent. Antarctica is. So how many continents? There are 7 continents. Asia, Africa, North America, South America, Antarctic, Europe, and lastly Australia. They have recently discovered a new continent very close to Australia. Find out about it. So the lesson is the summit within. हमारे अंदर जो summit है, यानी summit क्या होती हैं? जो पहाड़ की चोटी कहते हैं उसको बोलते हैं summit, highest point. So this person, Major H.P.S. Ahluwalia, who was he? He's Sardar Ji, and let's know about him first. Major H.P.S. Ahluwalia is an Indian mountaineer. यानी पर्वतारोही थे वो. And during his long career he has made contributions in the fields of adventure, sports, environment, disability and social work. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एडवेंचर में, स्पोर्ट्स में, इन्वायरमेंट में, लोग जो डिसेबल होते हैं उनके लेके, और सोशल सर्विस बहुत करी है. फॉलोइंग इज एडवांस ट्रेनिंग एट द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग. Darjeeling में there is a Himalayan Mountaineering Institute, HMI. He climbed extensively in Sikkim, Nepal, and later he climbed the Mount Everest on 29th of May 1965. इस दिन उन्होंने Mount Everest को climb किया, which is the highest mountain in the world, as you know. And let's find out its height. I think it's 8848 meter. So, and it's very difficult to climb this mountain. Many people died doing so, and some of them were successful. And the first one, to find out who was the first one who had climbed Mount Everest, what was his name, who was his companion, and in what experience they went through in doing so. The first Indian woman to climb Mount Everest was Bachendri Pal. Now read on to find out how Major H.P.S. Ahluwalia felt as a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Many emotions welled up inside me when I stood on the summit of Everest. बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी जो फीलिंग्स थी वो मेरे अंदर इकट्ठा हुई जब मैं वहाँ सबसे ऊंची चोटी पे एवरेस्ट की पहुँच गया. Looking over miles of panorama below us. Panorama is landscape. और दूर दूर तक, सब बहुत ऊंचाई पे है ना चोटी, तो दूर दूर तक उनको नज़ारा दिख रहा था आसपास का. The dominant one I think was humility. अब कौन सी फीलिंग थी जो सबसे ज़्यादा उनके अंदर डेवलप कर रही थी, और वो थी ह्यूमिलिटी की. ह्यूमिलिटी मीन्स बीइंग हम्बल, नम्रता की, कि इस प्रकृति में हम कितने तुच्छ हैं, कितने छोटे हैं, कितनी विशाल और विस्तृत है ये प्रकृति. A part of me seemed to say, thank God it's all over.
एक तो हिस्सा ये कह रहा था कि भगवान अच्छा है, ये ख़त्म हो गई ये क्लाइंब। बहुत मुश्किल थी ना उनके लिए, काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है और बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, गिरने का लगातार डर रहता है, एक दूसरे को खींचता है ऊपर और इस तरह ऊपर तक जाते हैं। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो बजाय इसके कि हम बहुत ही डिलाइटेड खुश हो जाते, थोड़ा सा एक टिंज मीन्स देयर वाज अ टच ऑफ सैडनेस, थोड़ा उदासी थी। कई बार ऐसा होता होगा, आप एग्ज़ाम देने के बाद जो है कई बार लगता है अरे अच्छा हुआ इम्तिहान ख़त्म हो गया, लेकिन कई बार एक उदासी सी लगती है, अरे ख़त्म हो गया अब हम क्या करेंगे। सो वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। ये ऐसा क्यों था, क्यों उदासी महसूस हो रही थी कि अल्टीमेट यानी कि द लास्ट पॉइंट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ऊंचा कोई पर्वत है ही नहीं, तो अब क्या हम किसको फतेह करेंगे। अगर होता तो ज़रूर उसे भी कोशिश की जाती क्लाइम करने की। तो बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवर पावर्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आप एवरेस्ट में जब चोटी पे पहुंचते हैं तो आपके जो कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको घेर लेती हैं, बहुत ही गहरी एक खुशी और एक धन्यवाद का भाव। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसी खुशी है जो सारा जीवन आपके साथ रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जो पहाड़ पे जाता है वो कभी वही नहीं रह पाता जो वो होता है। ही गेन्स इमेंसली फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से पर्वतों से बहुत ज़्यादा उसे, इमेंसली मीन्स अ लॉट, उसको बहुत कुछ मिलता है। He becomes conscious of his own smallness and loneliness in the immeasurable universe. वो किस बात को लेके कॉन्शियस हो जाता है, और कि वो कितना तुच्छ छोटा है और कितना अकेला है, इमेजरेबल जिसको नापा ना जा सके, ऐसे यूनिवर्स में यानी कि ऐसे ब्रह्मांड में। As I look back at the life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less difficult and no easier to climb. जब हमने एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया तो अब मुझे इस बात पे कमेंट करना पड़ेगा कि एक दूसरा समिट होता है जो हमारे दिमाग में होता है, और वो उसको क्लाइम करना तो जो है वो भी कोई कम आसान नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब हम उतर रहे थे नीचे और जब हमारी जो शारीरिक थकान थी, एग्जॉशन मीन्स थकान ख़त्म हो गई, तो अब मैंने ये पूछना शुरू कर दिया कि हमने क्लाइम क्यों किया एवरेस्ट को। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। क्यों मैं चाहता था उस समिट को रीच करना, क्यों मेरे दिमाग में बस वही भरा हुआ था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। ये तो हो चुका। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर दिन ये है ये रिमोट होता जाएगा, फार होता चला जाएगा ये विचार। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। बचेगा क्या, मेरे जो स्मृतियाँ हैं वो भी धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी, दे विल डिसअपियर ग्रेजुअली। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये सब मेरे विचारों से मैंने सोचा कि ये लोग क्लाइम क्यों करते हैं माउंटेन्स को। It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. तो सबसे आसान तो यही होगा जो किसी और ने भी कहा था। यहाँ पे देखिए, because it is there. This is what British mountain climber George Lee Mallory said in reply to the question, why do you want to climb Mount Everest, asked to him by a journalist. किसी पत्रकार ने उनसे पूछा आप क्यों क्लाइम करना चाहते हैं, तो कहता है क्योंकि वो है वहाँ पे इसलिए मुझे क्लाइम करना है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसा दूसरे ने कहा था मैं भी वही कह सकता था, बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, बहुत मुश्किलें हमारे सामने रखता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इंसान को अपनी रुकावटें पार करने में बहुत ही खुशी होती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, यहाँ पे किस तरह की
रुकावटें थी, ज़्यादातर शारीरिक थी. अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर. समिट को क्लाइम करने के लिए क्या क्या चाहिए? एंड्योरेंस मीन्स स्टैमिना, थके नहीं आप, और दृढ़ निश्चय और आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर. द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज़ नो डाउट एक्साइटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और मैं इन सब का प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेट करता, इनको दिखाता कि मेरे अंदर ये सब हैं, ये फिजिकल क्वालिटीज़. ये बड़ा ही उत्साहजनक विचार था और मेरे लिए भी था. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. लेकिन मेरा जो जवाब है वो ज़्यादा व्यक्तिगत है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू माउंटेन्स. बचपन से मैं आकर्षित रहा हूँ पर्वतों से. आई वुड बी मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. अगर उनसे दूर रहूँगा तो बहुत ही दुखी और एकदम खोया रहूँगा. इन द प्लेन्स, कहाँ पर? ये जो हमारे मैदान हैं उनमें. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. पर्वत अपने प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. उनका जो सुंदरता है और उनकी जो विशालता है, मेजेस्टिक हैं, बड़े ही शानदार हैं. तो ये गिव अ ग्रेट चैलेंज, बहुत ही ये चुनौती देते हैं. एंड आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और मैं ये भी मानता हूँ कि पर्वत हमारे लिए ईश्वर के साथ संवाद का एक ज़रिया है. That is feeling a close relationship with God, communion means. Once having granted this, the question remains, why Everest? अब ये तो चलो मान लिया हमने, लेकिन अब सवाल ये है कि कोई भी पर्वत क्यों नहीं, माउंट एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और सबसे ज़्यादा ताकतवर, माइटीएस्ट है, और इसने डिफाई किया है. डिफाइड मीन्स फ्रस्ट्रेटेड. कई लोग मारे गए हैं इसको क्लाइम करने में, स्पेशली तब अगर एवलांच चल रहे होते हैं ना, जब बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं, उसमें कई पर्वतारोही मारे जाते हैं. मौसम अच्छा होता है तो क्लाइम कर लेते हैं. तो ऐसे पहले कई अटैम्प्ट्स हो चुके थे कि जिसमें लोग नहीं कर पाए थे, रास्ते में ही वापस आ गए थे या मारे गए थे. तो दे हैड फ्रस्ट्रेटेड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो पहले हो चुके थे. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. आउंस इज ऑल्सो ए मेजरमेंट ऑफ वेट. तो ये आपका आखिरी जो 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 पार्ट होता है किसका? एनर्जी, आपकी ताकत का, उसको ये ले लेता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. बहुत ही ब्रूटल मीन्स वेरी वेरी काइंड ऑफ अ savage kind of a struggle with rock and ice. चट्टानों से और बर्फ़ से बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होता है. Once taken up, it cannot be given up. एक बार शुरू कर दिया, अब आप रास्ते में नहीं छोड़ सकते. हाफ वे, आधे रास्ते में. Even when one's life is at stake. अगर आपकी ज़िंदगी भी जो है दांव पे लगी हो. The passage back is as difficult as the passage onwards. तो नीचे आना भी उतना ही डेंजरस है जितना ऊपर जाना है. तो क्यों ना ऊपर ही जाया जाए. And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. और एक बार अगर आपने समिट को क्लाइम कर लिया, exhilaration means great happiness and the joy that you have done something as if you have won a battle. There is a feeling of victory and of happiness. विजय की और खुशी का भाव रहता है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. और थोड़ी दूरी पे जाके जब मैं उसकी चोटी को देख रहा हूँ, glimpsing means seeing, तो I get moved to another world. दूसरी दुनिया में चला गया. I experience a change within myself. अंदर से मुझे एक change लगा. This can only be called spiritual. ये कैसा change था? It was spiritual. बड़ा आत्मिक था. By its beauty, aloofness, might. कितना सुंदर था, कितना aloof means not affected by anything. Might means power. So whom is talking about? The mountain. कि वो beautiful था, aloof था, mighty था. Ruggedness means very rough. And the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. और इस सब से मैं प्रभावित हुआ, और जो मुझे मुश्किलें फेस करी मैंने रास्ते में वहाँ पीक पर जाने के लिए, वो मुझे और भी ज़्यादा
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. ये तो एक ऐसी चुनौती है कि जिसको आप स्वीकार करे बिना नहीं रह सकते. वंस एट द समिट देयर इज़ अ सेंस ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद समथिंग बियॉन्ड यू. एक बार वहाँ आप पहुँच जाएं तो आपको लगेगा आप किसी ऐसी चीज़ से कनेक्टेड हैं जो आपसे भी बहुत ऊपर है. This curious sense of nearness to the infinite is what really sustained us in our final physical effort in climbing to the top of Everest. ये जो बड़ी अजीब सी एक सेंस थी, इन्फिनाइट होता है अनंत के साथ जो एक हमारी निकटता थी, ये जो फीलिंग थी, ये इसने जो है हमको सस्टेन किया, मीन्स हमको स्ट्रेंथ दी कि हम अपना फिज़िकली एफर्ट लगाएं कि हम वहाँ टॉप पर पहुँच जाएं. इट ब्रॉट इंटू फुल प्ले आवर करेज एंड कॉन्फिडेंस. हमारा हिम्मत और हमारे आत्मविश्वास को हमें पूरी तरह यूज़ करना पड़ा, फुल यूज़ करना पड़ा. Amidst the snow and winds of that cold, unfriendly and a completely difficult region, we were able to hold our own. तो ये जो बर्फीली हवाएं चल रही थी, जो बहुत ही जो थी फ्रेंडली नहीं थी, एकदम जैसे हमको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही थी. बहुत ही मुश्किल जो क्षेत्र था वहाँ पे हमको अपने आप को सुरक्षित रखना था. Our bodies were only vehicles for housing the determination to overcome it all, come what may. हमारे शरीर क्या थे? सिर्फ एक व्हीकल, ज़रिया थे. किसके लिए? किसको रखने के लिए? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को, कि हम जो है इन सब से पार पा सकें, कुछ भी हो जाए. राइट, वट एवर बी द आउटकम. आई वॉज नॉट लेट डाउन बाई एवरेस्ट. एवरेस्ट ने मेरे को निराश नहीं किया. Defeat, it didn't defeat him or disappoint him. The world did not let us down. दुनिया में ने भी नहीं किया. For it reacted fully to our achievement. हमारा जो भी ये हमारी जो उपलब्धि थी उसको उन लोगों ने पूरी तरह से उससे रिएक्ट किया. द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफ़ेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग. वैसे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके जो बाद में असर हुआ वो बड़ा ही संतोषजनक था. Not only India but everywhere else in the world are having gone to the summit was acclaimed suitably. सारी दुनिया ने हमारे इस प्रयास की सराहना की. Acclaimed means acknowledged and much admired. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question about why you breathe. तो अब मैं सब बातें जो मैं कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह ये बात एक्सप्लेन नहीं करी है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों गया. जैसे आप इस बात का आप आंसर नहीं दे सकते कि आप सांस क्यों लेते हैं. वाई डू यू हेल्प योर नेबर. पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं. आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं. कोई भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है. और एक ये भी एक फैक्ट है कि एवरेस्ट जो है ये सिर्फ फिज़िकली ही नहीं क्लाइम किया जाता है, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. आप फिज़िकली वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक हिस्सा है आपकी उपलब्धि का. देयर इज़ मोर टू इट देन दैट. इससे ज़्यादा कुछ है. इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. और उसके बाद एक बहुत आपको संपूर्ण होने का एहसास होता है. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स. हमारे अंदर एक तरह की संतुष्टि होती है कि हम आसपास की जितना हमारी सराउंडिंग्स है उससे ऊपर उठने का एक हमारे अंदर जो एक बहुत ही गहरी इच्छा होती है, डीप अर्ज होती है, वो भी एक रीज़न है ऐसा करने का. इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. ये जो अनंत एटर्नल अनंत प्रेम है एडवेंचर के लिए का मतलब जो रोमांचक कार्य होते हैं उनको करने का इंसान के, तो यही उसके प्रति जो उसका अनंत प्रेम है वो इसका एक कारण है. अब आप जानते हैं कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज करी थी और दुनिया में निकल पड़ते थे लोग. क्या कहते थे उस समय की 3 चीज़ें थी जो उनको इस बात के लिए प्रेरित करती थी. द 3 P's: पेल्फ, पावर एंड प्रेस्टीज. पेल्फ इज़ मनी, पर्स.
पावर और प्रेस्टीज, ये 3 चीज़ें होती थी जिसको वजह से लोग रोमांचक यात्राओं पर निकल जाते थे। अब यहाँ पर जो है ये अपने कारण बता रहे हैं, इंटरनल लव फॉर एडवेंचर। So the experience is not merely physical, it is emotional and spiritual. So this experience is not only physical, it is emotional, भावनात्मक और spiritual जो है हमारी आत्मिक है। An American mountaineer once defined climbing as 9/10 hell and 1/10 beauty. एक अमेरिकन क्लाइंबर ने कहा कि जो है क्लाइंबिंग क्या है, 9/10 तो बहुत मुश्किल है और 1/10 ब्यूटीफुल है। तो जैसे कहते हैं ना, व्हाट इज़ अ जीनियस? जीनियस इज़ 9/10 डिलीजेंस एंड 1% इंटेलिजेंस। जो बच्चा जीनियस कहलाता है ना, वो 9/10 तो उसकी मेहनत होती है और 1/10 उसकी बुद्धि होती है। नाउ कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आपकी जो आखिरी ऊंचाइयां हैं उस पे उसको आप क्लाइंब को उसको कंसिडर करो। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। आप आपके और एक दूसरा क्लाइंबर है, उसकी रोप एक ही है। यू फर्म इन, और वो जो है आप उसको कहीं पे कस के बांधते हैं। और ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, और वो हथौड़े और छेनी लेके उसमें जो है स्टेप्स बनाता है, सीढ़ी बनाता है जो जमी हुई बर्फ़ होती है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। बिलेज मीन्स ही प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय ड्राइंग अ रोप एंड अटैचिंग इट टू अ रॉक टू मेक अ को क्लाइंबर सेफ। तो वो उससे उस स्टेप से उसको कहीं पे खूब अच्छे से सिक्योर कर लेता है कि फिर आप थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम। ग्रिम मीन्स वेरी सीरियस, हार्श। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आप अपना एक एक जो स्नायु तंत्र है, एक एक जो आपकी नर्व है, उसको आप स्ट्रेन करते हो। ज़रा सी सावधानी हुई और दुर्घटना घटी। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। कईयों ने बताया कैसे हमारी मदद की गई। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो बताते हैं कि हमको बस वही मदद चाहिए थी, अदरवाइज वी वुडंट हैव मेड इट, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और नहीं तो वो रास्ते में प्रयास छोड़ देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट। कभी आप बहुत ऊंचाई पे जाएं तो जितना ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और आप हाँफने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप बहुत अपने आप को बुरा भला कहते हैं कि क्यों यार इस पचड़े में पड़ गया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट। असेंट मीन्स क्लाइंब। आप ये सोचते हैं यार क्यों मैंने ये ऐसा किया, क्यों ये चढ़ाई चढ़ाओ। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे क्षण होते हैं आपको लगता है वापस चलो, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। फिर अचानक एकदम आप इस तरह की फीलिंग से, उस तरह के मूड से बाहर आ जाते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। कुछ है आपके अंदर जो आपको इस संघर्ष करना छोड़ने से रोकता है। एंड यू गो ऑन, बट कंपेनियन कीप्स अप विद यू। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। आप अकेले नहीं होते, आपका एक साथी भी होता है, वो आपको सहारा देता है। जस्ट अनदर 50 फीट। अब 50 फीट और रह गए, और 100 या 100 मे बी। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड देन यू आर एट द समिट। वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, और फिर जो है एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, चलो चलो चल 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 चलो, इस तरह से। देखिए इनका हेड गियर और आँखों पे चश्मा है, हाथों में ग्लव, पूरी तरह कवर्ड है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में होता है टेम्परेचर वहाँ, और हवा चल पड़ती है तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप पहुँच गए समिट पे। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। और आप समिट के चारों तरफ देखते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं कि भाई इतना प्रयास करना तो सही था, बहुत अच्छा रहा, इट वॉज वर्थ इट। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और जहाँ वहाँ जो बादल होते हैं उनमें से आपको दूसरी चांदी जैसी चमकीली चोटियाँ नज़र आती हैं। कभी आप कश्मीर वगैरह जाएंगे
या इधर ही चले जाएं उत्तराखंड में तो, और आसमान साफ़ हो बारिश के बाद, तो आपको बर्फीली चोटियाँ नज़र आएंगी. इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर आप लकी हैं तो उसके ऊपर सूरज की धूप भी होगी. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. आपका जो चोटी है उसके चारों तरफ की जो चोटियाँ हैं वो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि किसी जड़ाऊ हार के समान वो लगेंगी. बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आपको बड़े बड़े घाटियाँ नज़र आएंगी दूर दूर तक. तो इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही आपको गर्व से भर देने वाला, बहुत ही आपको एक एनरिच करने वाला, जिससे आप बहुत ही आप समृद्ध अपने आप को महसूस करेंगे. ऐसा अनुभव ये होता है अब जब आप क्या देखते हैं, समिट से चारों तरफ देखते हैं, किसी भी माउंटेन के समिट से नीचे देखते हैं. यू बो डाउन टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप उस ईश्वर के आगे झुक जाते हैं जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ये सरदार जी हैं तो गुरु नानक की फ़ोटो छोड़ दी. एंड हिज अदर फ्रेंड रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. रावत जो है पहाड़ के हैं, गढ़वाल के, उन्होंने देवी दुर्गा की फ़ोटो छोड़ी. फू दोरजी लेफ्ट अ relic of the Buddha. Fu Dorji is someone from northeast who believes in Buddhism. So he left a relic, होता है उनका कोई एक निशानी, बुद्धा की कोई निशानी उन्होंने छोड़ दी. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn. एडमंड हैलेरी कौन थे? ऑस्ट्रेलियन थे. इन्होंने पहली बार समिट को जो है क्लाइम किया था. तो उन्होंने वहाँ क्या छोड़ा था? अ हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स को कैर्न कहते हैं. तो रॉक्स और स्टोन्स के नीचे उन्होंने एक क्रॉस छोड़ दिया था, बिकॉज ही वॉज अ क्रिश्चियन. ही बिलीव्ड इन क्राइस्ट. इन द स्नो, बर्फ़ के अंदर उन्होंने चट्टानों के नीचे और पत्थरों के नीचे क्रॉस छोड़ा. दे आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट रिवेरेंस. ये इस तरह के ये प्रतीक नहीं है कि हमने जीत लिया समिट को. ये तो रिवेरेंस होता है, हमारी जो आस्था है, जो हमारा आदर है, उसके प्रतीक हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. आप अगर कभी वहाँ पहुँच जाएं समिट पे तो आप बिल्कुल बदल जाएंगे. देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ. एक और समिट है जो हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है. इट इज़ इन योर ओन माइंड. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. हर इंसान के अंदर उसका एक पहाड़ की चोटी होती है. ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. और उसको वहाँ तक क्यों पहुँचना होगा? कि वो अपने आप को समझ सके. इट इज़ फियरफुल बट एंड अनस्केलेबल. बड़ा डरावना है और वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है. इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. और कोई थोड़ी ना उस पहाड़ की ऊंचाई को तक पहुँचेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो हमारी वीकनेसेस है ना, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इंसान की जो 5 वीकनेसेस होती हैं, अगर वो उनको विजय प्राप्त कर ले तो ही हैज़ वन द वर्ल्ड एंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. वो कौन सी हैं? हम बताएंगे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. दैट इज़ लस्ट, anger, greed, attachment and your pride, जो आप अपने किसी भी बात पे घमंड करें. तो ये सब कमज़ोरियाँ हैं और यही होती हैं इंसान के अंदर. अगर इनसे वो पार पा जाए तो वो समझिए उसने अपने आप को विजय प्राप्त कर ली और संसार पर भी. So the physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो ये जो फिज़िकल एक्ट है किसी माउंटेन के समिट पे जाना, वो सिमिलर है किस एक्ट के? कि जो हमारे अंदर जो एक पहाड़ है उसको क्लाइम करने के. द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द टाइम्स आर द सेम. उसके असर दोनों के बराबर होते हैं. वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिज़िकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. चाहे ये क्लाइम चाहे फिज़िकल हो, चाहे भावनात्मक हो या आपका आत्मिक हो.
The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. So I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. अब मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, साहस कर सकता हूँ ये कहने की कि ये जो एवरेस्ट को क्लाइम करने का मेरा अनुभव था, उससे मुझे क्या मिला है? एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिली है कि मैं अपने जीवन की जो ऑर्डियल्स हैं, द हार्ड कंडीशंस, कठिन परिस्थितियाँ, उनको रिजोल्यूटली का मतलब बहुत ही निश्चयपूर्वक उनका सामना करूँ. Climbing the mountain was a worthwhile experience. बहुत ही, it was worth it. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. And if you conquest your inner summit, that is also something which is worthwhile. So the internal summits are perhaps higher than Everest. जो हमारे अंदर की जो ऊंचाइयाँ हैं वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंची हैं. So now we come to the question answers. What were the two strangely opposite emotions that the narrator felt as he conquered the Everest? तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप सेंटेंस बनाएंगे. The two strangely opposite emotions that the narrator felt as he conquered the summit were humility that it was all over and sadness as there was nothing else to achieve. ACHIEVE. What are the three qualities that played a major role in the narrator's climb? So the three qualities that played a major role in the narrator's climb were, what were they? Endurance, persistence and willpower. What impact do mountains have on a climber? So इसका क्या असर होता है माउंटेन्स का किसी क्लाइंबर के ऊपर? The impact which mountains have on a climber is they learn courage, determination, cooperation, endurance and being humble. That he learns, यहाँ पे he learns कर दीजिएगा, that he or she learns courage, determination, cooperation, endurance and being humble. What is the other summit? Why is it more difficult to climb? Right, so we come to the question number 4. The other summit is within our own mind. This summit is the knowledge of one's own self. It is fearful and unscalable. That is getting over one's weaknesses. One has to climb it oneself. खुद ही climb करना पड़ेगा. Why had the narrator decided to ascend the Everest? Question number 5. I have marked it. Here it is. That the reason that the narrator wanted to scale Mount Everest was that a man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, determination and willpower. You can write this answer. See again, this question number 3 was, what impact do mountains have on a climber? You can give this answer also. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and the author believes that mountains are a means of communion with God. You can add this to answer number 3. Then we come to, the narrator feels that reaching the summit is a spiritual experience. Why does he feel so? Question number 6. So let's see where question number 6 is.
And the question again I'll read for you. First understand the question. The narrator feels that reaching the summit is a spiritual experience. एक बड़ा आत्मिक अनुभव है, तो ऐसा उसको क्यों लगता है? तो glimpsing a peak in the distance, we move to another world. We experience a change within ourselves, and this change is spiritual. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws us to it as Everest did. It was a challenge that was difficult to resist. Use was instead of is. So this you have to do yourself. Imagine that you are Major Ahluwalia, invited the chief guest to a school. Now give a speech sharing your experience with the students. Try doing yourself. Now here is the vocabulary. The words are related to mountaineering. So what are they? You please fill them up. She braved an avalanche. Avalanche क्या होता है? बर्फीले तूफान. अनप्रेडिक्टेबल वेदर. अनप्रेडिक्टेबल कहा ही नहीं जाता. पहाड़ों पे मौसम का कोई अब भी एकदम से साफ है, एकदम से बारिश होने लगेगी, कभी बर्फीली हवा चल पड़ेगी, तो उसको अनप्रेडिक्टेबल पहले से नहीं बता सकते ऐसा होने वाला है. शी ब्रेव्ड एन एवलांच. अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड पूरा पढ़िएगा बचेंद्र पाल के बारे में. उसके बाद ब्लिजर्ड्स भी वही होते हैं, बर्फीले तूफान. हियर क्रेस्ट इज द समिट, चोटी. देन एक्सप्लोरर्स, टीम ऑफ एक्सप्लोरर्स, खोजियों का एक दल. असेंट मतलब चढ़ाई. और प्लॉडेड मीन्स बहुत मेहनत से ऊपर जाना, मेहनत करके कुछ करना. ठीक है. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं. जब आपका कुछ एक्शन किसी और पे अफेक्ट करे तो वो ट्रांजिटिव है, और नहीं करे, आप ही के ऊपर असर करे तो इंट्रांजिटिव है. ठीक है. इसको रीड करिएगा. ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसका असर पड़ेगा आपके, जिस पर आपके एक्शन का असर पड़ेगा. और कई बार ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करनी है. इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन. तो ये क्या कर रहा है? प्रोग्राम्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन, बच्चों पे असर, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. टीचर, आई गेव माई टीचर नो रीज़न टू कंप्लेन. किस पे असर पड़ रहा है? मैंने कुछ किया नहीं कुछ, तो टीचर ने कंप्लेन नहीं, ये भी ट्रांजिटिव. यंग एथलीट प्रैक्टिस इन द फील्ड एवरी डे. अब ये जो प्रैक्टिस कर रहा है खुद ही कर रहा है, इसके एक्शन का और किसी पे, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ड है. आई डांस्ड ऑल इवनिंग एट द स्कूल फंक्शन विद माई फ्रेंड्स. तो ये खुद ही डांस कर रही है, तो इंट्रांजिटिव. द सुनामी डिस्ट्रॉयड द कोस्ट लाइन. सुनामी ने कोस्ट लाइन डिस्ट्रॉय कर दी, तो ये ट्रांजिटिव वर्ड है. ठीक है. आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. तो दिस फिनिशेज योर दिस चैप्टर. One last chapter is left, that is something wonderful happens when you plant a seed.